In the second video, we will see about the parallax method. Now, this parallax method, as in the first video we have seen that we have started that how the scientists have measured the distance between the sun and the earth, sun and the moon, and sun and all the planets. Nobody will go up to that much distance, and nobody will have the take the tape with this. So this is done by sitting on the earth only. They have calculated. So by what method they have calculated? So this method is called as what? Parallax method. Now what is parallax method? If you take the example, suppose हम एक हाथ में पेन पकड़ते हैं और अपने आँखों से सामने रखते हैं, पेन हाथ में पेन पकड़ के रखा है और हाथ सामने किया और एक आँख को बंद कर दिया और उस हाथ को देखा. ओके, पहले देखना है, उसके बाद दूसरी आँख को बंद करना है, जिस आँख से देख रहे थे उस आँख को बंद कर देना है, फिर दूसरी आँख से देखना है. तो हमें क्या दिखेगा? जो पेन हाथ में पकड़ा हुआ है वो अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ऐसा अपने को लगेगा. इट इज चेंजिंग द डिस्टेंस. दिस चेंजिंग ऑफ द डिस्टेंस, शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द आई इज कॉल्ड एज द पैरालैक्स. ये नोट्स में मैंने डाल के रखा हुआ है पूरा. ओके, सो in this particular case, the distance between the two long is called as the, this can be calculated by using the parallax method. Okay, so now parallax method say we have to understand the two things. Suppose here we will take that this is the earth surface. Okay, and here is a planet P. Now what has to be done? On the earth surface, 2 points are to be considered. 2 पॉइंट कंसिडर करना है अर्थ पे. एक पॉइंट P1 है और दूसरा पॉइंट P2 है. ये डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं अर्थ के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. इसको हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे. सो दिस पॉइंट P will make an angle theta. So when it is making an angle theta, we don't know this distance, but we know by the method or in parallax method, here P1 and P2 are called as the basis. P1 and P2 को क्या कहेंगे हम? बेसिस कहेंगे. थीटा जो है, दिस थीटा इज द पैरालैक्टिक एंगल और पैरालैक्स एंगल इट इज कॉल्ड. Parallax angle, or it is called as parallactic angle. Clear? So when it is called as a parallax angle or parallactic angle, we know that parallax is the apparent shift in the position of the body with the background due to the shift in the position of the eye. Abhi, in this particular case, we have to determine the distance between the planet and the earth by using the parallax method. So this is the condition. It is given to us that P is the planet, theta is the parallax angle, and this P to P1 is capital D. From P1 to P2 is B. Okay, P1 and P2 are the positions on the earth. Here theta is considered to be very very small. Theta is considered as what? Very very small, because the distance is very high, long. So ये जो B है, B क्या आएगा? आर्क लेंथ. B will come what? Arc length of a circle. Okay. B, if suppose
if we consider that from this point, if we draw the circle with P as what? Center. फिर से एक बार समझ लो, अभी हमें क्या कंसिडर करना है? B point is considered as an arc of a circle with P as center. तो D क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा. D क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल. सो जब इस कंडीशन से हम कर रहे हैं, रेडियस हमको फाइंड आउट करना है. मुझे क्या करना है? B का वैल्यू मालूम है. सो दिस इज द आर्क. ओके, सो वी नो द फॉर्मूला. जस्ट नाउ वी हैव सीन पैरेलक्स एंगल theta is equal to arc length divided by radius. So what is the arc length? B. What is radius? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? D, कैपिटल D. तो D मुझे फाइंड आउट करना है. तो what I can do? I can send this D to second side. तो D is equal to theta B upon theta. So with this method we can calculate the distance between the earth and the sun or any of the planet. क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस मेथड इज कॉल्ड एज द पैरेलक्स मेथड. और एक बार समझ लो इसको. पैरेलक्स मेथड इज व्हाट? इन केस ऑफ पैरेलक्स मेथड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द शिफ्ट बिटवीन द पोजिशन ऑफ द बॉडी, apparent shift in the position of the body with the background. तो कैसे समझेंगे? हाथ सीधा रखना है सामने और उस हाथ में अपना पेन पकड़ लो. पेन का नीब ऊपर रहेगा. ऊपर रखने के बाद एक आंख से उस पेन को देखो. ओके, अब दूसरे आंख से उस पेन को देखना है. एक आंख बंद कर लेना है, दूसरे आंख से देखना है. जब दोनों टाइम में तुम देखोगे तो व्हाट यू विल सी? बैकग्राउंड के साथ वो जो पेन का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है. पहले आंख में पोजीशन अलग है, दूसरे आंख में पोजीशन अलग है. तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे? ये पैरेलक्स मेथड हम फाइंड आउट करेंगे. साइंटिस्ट ने इसी बेसिस पे डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन और अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स वी हैव फाउंड आउट. तो यहाँ पे भी और एक बार इस फिगर को देखो. If suppose P is the planet, D is the distance, and P1 and P2 are the 2 points on the earth. P1 P2 क्या है? 2 पॉइंट है अर्थ के ऊपर. ये डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं. D क्या है? रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है. थीटा क्या है? एंगल है. सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अभी हमको क्या कंसिडर करना है? P1 एंड P2 से एक सर्कल कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा हम कंसिडर करेंगे. We will consider that it is an imaginary circle such that P1P and P2P will become the radius and P point will become the center of the imaginary circle. So when we are considering like that, at that time what will happen then? P1 P2 will become arc length. P1 P2 will become what? Arc length. उसका distance हमको मिल जाएगा B. Okay, theta, since theta is very very small because the distance is वेरी हाई, सो थीटा विल बी टेकन. तो थीटा इज इक्वल टू B by D. ए अभी हमने फाइंड आउट किया था, अभी हमने जस्ट देखा प्रीवियस सेक्शन में सेक्टर के केस में. तो थीटा इज इक्वल टू B by D. कैपिटल D इज व्हाट? रेडियस. सो D विल बिकम B by थीटा. तो ये हुआ ख़त्म तुम्हारा पैरेलक्स मेथड. तो आज तुम लोगों को क्या करना है? पैरेलक्स मेथड कंप्लीट कर लेना है. मीन्स पैरेलक्स मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट और द एनी अदर अर्थ एंड द मून. ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस पैरेलक्स मेथड को यूज़ करते हैं. ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आज ये कंप्लीट कर लेना है. अभी नेक्स्ट देखेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द प्लैनेट और मून को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे.